جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے کے بیڈ پہ تھی۔ میری پھپھو، میرے والد میرے بیڈ پہ بیٹھے تھے، دونوں ہی پریشان تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کے پھپھو کہنے لگی، عدن میرے بچے کیا ہوا تھا تمہیں؟ رو کیوں رہی تھیں؟ بے ہوش کیوں ہو گئی تھیں؟ میرے والد کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، ابا وہ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے والد اٹھ کے باہر چلے گئے۔ پھپھو کہنے لگی، مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، پھپھو وہ ابو ذر، میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جب باہر سے ابو ذر کی آواز آئی، اندر رکھو جی یہ مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے۔ مجھے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کے دبوچا ہو۔ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ میرے والد کی آواز آئی۔ میں جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری، مجھے دوپٹے تک کی ہوش نہیں تھی۔ میں تیزی سے کمرے سے نکل کے صحن میں چلی گئی، جہاں ابو ذر سفید شلوار قمیض پہنے اپنے انہی کزنز کو مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے اندر رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ اس کی والدہ اور والد بھی ساتھ آئے تھے۔ والدہ کے ماتھے پہ بل تھے، والد البتہ میرے والد کے گلے لگے۔ میری پھپھو یہ سب دیکھ کے حیران تھی۔ میرے والد بڑے تعجب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگ یہاں اور یہ سب؟ میرے والد سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہمارے صحن میں مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں جب بچے کا رشتہ طے ہو جائے تو لڑکی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے بھائی صاحب، ابو ذر کے والد نے کہا۔ رشتہ؟ کس نے رشتہ پکا کیا؟ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ میرے والد حیران پریشان تھے۔ میری پھپھو بھی میرے والد کے برابر میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ تبھی ابو ذر کی والدہ کہنے لگی، آپ لوگوں کے گھر مہمانوں کو بٹھانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ بڑے تیکھے لہجے میں وہ بولی تھی۔ بھاری بھرکم جسامت کی مالک خاتون تھی۔ میری پھپھو ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ ابو ذر خود ہی اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے انہیں ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ امی آپ یہاں بیٹھیں۔ آہستہ آہستہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح وہیں صحن میں کھڑی رہی۔ اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھائی صاحب آپ کی بات میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرے والد نے بات شروع کی۔ ارے اس میں سمجھنے سمجھانے والی بات کیا ہونی ہے بھلا؟ بس جی، جب بچوں نے ہی سب کچھ خود ہی طے کر لیا تو ہم تو بس رسماً دنیا داری نبھانے آئے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے عزت رہ جائے، ہماری بھی اور آپ کی بھی۔ ابو ذر کے والد نے جواب دیا۔ ابو آپ کن باتوں میں لگ گئے ہیں؟ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ… او تو چپ کر ذرا، ابو ذر کی والدہ کی آواز گونجی۔ اپنے بیٹے کی بات انہوں نے مکمل ہی نہیں ہونے دی۔ پھر میرے والد سے کہنے لگی، بات یہ ہے کہ آپ کی لڑکی نے میرے لڑکے کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائی ہیں، بڑے پیچے لڑائے ہیں۔ جب لڑکیوں کے ایسے طور طریقے ہوں تو یہ نتیجہ تو نکلتا ہی ہے۔ بلائیے اپنی بچی کو تاکہ میں اسے منگنی کی انگوٹھی بھی پہنا دوں۔ اور ہاں، شادی پورے 1 مہینے بعد اسی مہینے کی آخری جمعے کو ہوگی۔ اس کی والدہ نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی۔ میری پھپھو کہنے لگی، بہن ہماری عدن ایسی نہیں ہے، آپ ہماری بیٹی پہ گھٹیا الزام لگا رہی ہیں اور ہمیں یہ رشتہ قبول بھی نہیں ہے۔ پھپھو کا یہ کہنا تھا کہ ابو ذر بول پڑا، پھپھو جی میری والدہ ذرا غصے کی تیز ہیں، ان کی باتوں کا برا مت منائے۔ عدن جی نے کچھ نہیں کیا جی، آج تک تو کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی، بس مجھے وہ اچھی لگتی ہیں۔ میں جی بہت خوش رکھوں گا جی عدن جی کو، میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے، اور بھی جو جی چاہے وعدہ لے لیں جی، پر جی انکار نہیں سننے آیا میں۔ ابو ذر کی بات پہ میرے والد کہنے لگے، بیٹا دیکھو ہم لوگ یوں غیروں میں شادی نہیں کرتے، میری بیٹی کے رشتے کی بات کہیں اور چل رہی ہے۔ چاچا جی میں جانتا ہوں عدن کی بات کہیں نہیں چل رہی، آپ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، خدا کے لیے انکار نہ کیجیے گا۔ ارے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے پیروں کے پاس سے اٹھو۔ وہ شاید میرے باپ کے پیروں میں بیٹھ گیا تھا۔ نہیں چاچا جی، جب تک آپ میرا رشتہ قبول نہیں کریں گے میں نہیں اٹھوں گا۔ بیٹا دیکھو یہ بری بات ہے، اٹھو بیٹا یہاں سے اٹھو، میرے والد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی صاحب یہ نہیں ٹلنے والا، آپ بیٹی کو بلائیں، ابو ذر کے والد نے کہا۔ لیکن بھائی صاحب آپ ہماری بات کو تو سمجھیں، ہمیں وقت تو دیں، میری پھپھو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑیں بہن، پہلے بیٹی کو سنبھال کے رکھنا تھا نا، ہمارے لڑکے کو اپنی محبت کے جال میں اچھا پھنسایا ہے اس نے، اب یہ شریف ہونے کا ناٹک نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ پھر وہ خاتون باہر آئیں۔ میں ابھی تک بت بنی صحن میں ہی کھڑی تھی جب اس نے میری کلائی پکڑی اور ڈرائنگ روم میں لے جا کے بٹھا دیا۔ شاید اس وقت میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو چکی تھی، کسی کٹی پتنگ کی طرح سے اس عورت کے ساتھ جا کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ میری پھپھو اور والد دونوں ہی تذبذب کا شکار تھے۔ میں کسی بے جان بت کی طرح سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس عورت نے ایک سرخ دوپٹہ میرے سر پہ رکھ دیا، میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ میں نے ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کون کون کھڑا ہے۔ میرے دماغ کی یہ حالت تھی کہ میں کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی، سوائے خوف کے میرے اندر اور کوئی دوسرا جذبہ نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ شخص مجھے اپنے علاوہ کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ ابھی وہ میرے گھر والوں کے سامنے منت سماجت کر رہا تھا، کل کو وہ دھمکیوں اور بدماشیوں پہ اترا تھا۔ میرے والد اور میری پھپھو ویسے ہی ان چیزوں سے گھبراتے تھے۔ لو جی آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے ابو ذر کی امانت ہو گئی، اس مہینے کے آخری جمعے نکاح اور رخصتی کروا کے ہم لے جائیں گے۔ پھر وہ خاتون کہنے لگی، دیکھو بہن سامان اور جہیز تو ہمیں نہیں چاہیے، لیکن میری برادری میں بڑی عزت ہے اور ابو ذر میرا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا ہے، اس لیے شادی میں نے دھوم دھام سے کرنی ہے، بارات کے سامنے اچھا کھانا رکھنا بس۔ وہ عورت اور کیا کیا کہہ رہی تھی کیا نہیں،
میرا دماغ سن تھا. سب لوگ آہستہ آہستہ جا چکے تھے. میری پھپھو تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی. میرے والد بھی چپ تھے. پھر مجھ سے کہنے لگی, ادن تجھے ذرا شرم نہ آئی؟ تجھے یہ بگڑا ہوا گنڈا بدماش ہی ملا تھا دل لگانے کے لیے, اس سے منگنی کرنا چاہتی تھی تو. میں خالی خالی آنکھوں سے اپنی پھپھو کو دیکھ رہی تھی. میرے والد کہنے لگے, چپ ہو جاؤ تم. سریا, میرا دل نہیں مانتا کہ میری بیٹی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے. میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جس نے آج تک کبھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا. بنا مانگے میری ہر ضرورت کو پوری کر دیتا تھا. آج بھی بنا کہے سمجھ گیا تھا کہ میں ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی. میری پھپھو کہنے لگی, بھائی صاحب آپ نے اسے بہت سر چڑھا لیا. دیکھا نہیں اس لڑکے کی ماں کتنا سنا رہی تھی. ہائے ہائے, کیا کیا خواب نہ دیکھے تھے اس کے لیے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک گنڈے پہ دل ہار بیٹھی. انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب اپنا ہی سکہ کھوٹا نکلے. میں چپ چاپ کھڑی ہو گئی. مرے مرے قدموں سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی. میرے سر پہ دیا ہوا دوپٹہ گر چکا تھا. میں اپنے کمرے میں آ کے خود کو بند کر چکی تھی. آپ تو جی اسی دن میری ہو گئی تھی جس دن میرا دل آپ کے نام پہ پہلی بار دھڑکا تھا. اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی. میری پتھر آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے کہ میرا ہم سفر ایک شریف انسان ہو. پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کیا میں اتنی بری تھی کہ دعا رد ہو جاتی اور میری قسمت اس کے ساتھ جڑ جاتی؟ میں نے تو آج تک کبھی مکھی تک نہیں ماری تھی, کسی کو تکلیف نہیں دی تھی. اگر کبوتر زخمی پاؤں لے کے ہمارے چھت کی منڈیر پہ بیٹھتا تھا تو میں اس کے پاؤں میں لگا زخم دیکھ کے تڑپ جاتی تھی. فوراً اسے پکڑ کے دوا لگاتی تھی. 1 گھنٹہ اس کے زخم کو یاد کر کے میرا دل دکھتا رہتا تھا. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی تھی. کیا میں ایسے بدماش کو ڈیزرو کرتی تھی؟ کیا یہ تھی میری قسمت؟ میری آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے. اگر میں انکار کرتی, اپنی پھپھو اور اپنے باپ کو سچ بتاتی, تو ہوتا یہ کہ پورے محلے میں تماشا سا بن جاتا. جس نے اپنے ماں باپ کی نہ سنی وہ میرے ماں باپ کی کیا سنتا؟ دھمکیوں پہ, بدماشی پہ اتر آتا. کیا خبر میرے باپ کو گولی سے ہی نہ مار دیتا, کیونکہ جب مارنے پہ آتا تھا تو اندھا دھند مارتا تھا بنا دیکھے. مجھے لگ رہا تھا میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا ہے. گھٹن کا احساس بڑھنے لگا تھا. اگلے روز میرا پیپر تھا اور میری کوئی تیاری نہیں تھی. تیاری کر کے کرتی بھی کیا, قسمت تو وہیں پھوٹنی تھی. میں پیپر دینے گئی تو افیرہ مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی. پیپر دینے کے بعد میرے پاس آئی, میرا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی دیکھنے لگی. تو پہن لی تو نے اس کے نام کی انگوٹھی؟ میں نے اپنا ہاتھ کھینچا. میں نے کہا, تو نہیں کہا تھا کہ تھپڑ مارتے؟ 1 تھپڑ مارا, اس نے انگوٹھی پہنا دی. میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہے جا رہے تھے. کہنے لگی, چل چھوڑ ان باتوں کو, تیری قسمت میں وہی تھا, اس لیے بن مانگے ہی مل گیا. میرے وظیفے بھی کام نہ آئے. اب تو ویسے بھی ہمارے خاندان کی ہونے والی ہے. وہ مسکرا رہی تھی. میں نے کہا, مجھے نہیں ہونا. ایسا کر 1 وظیفہ اور شروع کر دے کہ میں مر جاؤں. میری بات سن کے اس نے گہری سانس لی, پھر اپنے ہاتھ سے میرے آنسو صاف کیے. چل اب چپ بھی کر جا. میرے آنسو کون سے کام آ گئے اس پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے جو تیرے کام آئیں گے. چل چھوڑ, بس اپنا دل اور بھی مضبوط کر لے, کیونکہ آگے کی زندگی تیرے لیے بڑی آزمائش والی ہے. دیکھیے, مرد کی جو محبت ہوتی ہے نا, سمندر کے جھاگ کی طرح ہوتی ہے. مرد اس چیز کے لیے دل جان ہار دیتا ہے جو اس کی دسترس میں نہیں ہوتی. اس کو پانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتا ہے. اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اپنی پسندیدہ عورت کو پالے. لیکن جب اس کی دسترس میں آ جاتی ہے نا, بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے. 4 دن کی عشق معشوقی ہوتی ہے. اس کے بعد جو روپ تجھے ابو ذر کا نظر آئے گا نا, مت پوچھ. یہ جو تھپڑ تو نے مارا ہے نا, ہائے ہائے, یہ اس کی انا پہ جا کے لگا ہوگا. مجھے تو لگا تھا کمینہ پیچھے ہٹ جائے گا, لیکن شاید اس نے یہ بات اپنی انا پہ لے لی ہے. تجھے اس تھپڑ کی قیمت بہت بری چکانی پڑے گی ادن. یہ سن کے مجھے لگا جیسے میرے اندر کا سارا خون خشک ہو گیا. میں نے خوفزدہ آنکھوں سے افیرہ کی طرف دیکھا. تو نے ابھی اس کی ضد اور انا نہیں دیکھی, میں نے دیکھی ہے. میں نے دیکھا ہے جب وہ اپنے دشمن کو مارتا ہے تو اندھا دھند مارتا ہے, اسے چھوڑتا نہیں ہے. اور جو اس پہ ہاتھ اٹھائے اس کا تو وہ حشر کر دیتا ہے کہ پانی بھی نصیب نہیں ہوتا. میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا, آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. کہنے لگی, ہائے اس کی قربت کی پہلی رات بڑی مہنگی پڑے گی تمہیں ادن. پھر تجھ جیسی شریف لڑکی کا ایک بدماش کے ساتھ ایسی سنگت کا نبھانا, اف, بڑی کڑی آزمائش ہے تیرے لیے ادن. تو اسے اپنے پاس آنے کیسے دے گی؟ تجھے ہاتھ لگائے گا تو تجھے تو اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی. میں پتھر آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. میرے دماغ پہ تو جیسے ایک کے بعد ایک دھماکے ہو رہے تھے. شاید وہ مجھے مار ڈالے گا. افیرہ کی باتیں میرے اندر مزید خوف پیدا کر چکی تھیں. میں فوراً سے اپنی کتاب اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈالنے لگی. کہنے لگی, کیا ہوا, کہاں جا رہی ہے, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا, مجھے کچھ نہیں سننا, خدا کے لیے چپ ہو جاؤ. میری پہلے آدھی سے زیادہ جان نکلی ہوئی تھی. جو میں سوچنا نہیں چاہتی تھی وہ باتیں افیرہ کے منہ سے سن کے مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی. جب میں اپنے محلے میں پہنچی, گلی میں داخل ہوئی, تو میرے محلے میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں. امجد اور شاہد
एक एक दुकानदार को मिठाई दे रहे थे। अरे खाओ खाओ, भाई का रिश्ता तय हो गया है। आज तो पूरा मोहल्ला इतनी मिठाई खाएगा कि सदियों याद रखेगा। मैं नज़रें झुका के तेज़ कदमों से अपने घर पे आई थी। अंदर आई तो मेरी फुप्पो के माथे पे बल थे। अंदर बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। मैंने कहा, फुप्पो ये सब क्या है? कहने लगी, क्यों तुझे अबू ज़र ने नहीं बताया? तूने ही कोई फरमाइशें की होंगी उससे। मुझे सच बता, कॉलेज गई थी या उसके साथ शॉपिंग करने गई थी? उसके दोस्त यार, या यूँ समझ ले कि गली के गुंडे बदमाश ये सारा सामान तेरे लिए रख के गए हैं। जा उठा ले, अपने कमरे में जाके देख ले क्या लेके आया है। और एक लड़का तो ये भी कह के गया है कि अबू ज़र भाई कह रहे थे आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, शादी की सारी तैयारियां वो खुद करेंगे, आपको पैसों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि अपने बाप का बोझ इस तरीके से कम करेगी तू। अरे मेरे पास मेरा जेवर मौजूद था। मैंने तो सोच रखा था कि तेरी शादी होगी तो सारा जेवर बेच के धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी। क्या सोचा तूने कि तेरी फुफ्फो तुझ पे अपना जेवर भी नहीं वारेगी? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता अदन, क्या तू वही है जो अपनी हर छोटी छोटी बात मुझे बताती थी? इतना बड़ा काम कर लिया तुमने और फुफ्फो को शक तक नहीं होने दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई शॉपिंग बैग पकड़ा। बस अपने कमरे में आके यूनिफॉर्म बदला और अपने बेड पे लेट गई। दिन गुजरने लगे। मोहल्ले में यूं खुशियां मनाई जा रही थीं जैसे पता नहीं कोई ईद का समा हो। मैं अफीरा की बात तक नहीं सुन रही थी। पेपर देती और सीधा बाहर आ जाती। वो मुझे पुकारती रह जाती, पर मैंने उसकी बातें सुनना छोड़ दी थी। आए रोज़ मेरे घर में फैंसी कपड़े, जूते, मेकअप और ना जाने क्या क्या आ रहा था। यहाँ तक कि अरूसी लिबास तक आ चुका था। मेरा आखिरी पेपर बुध वाले दिन था और 2 दिन के बाद शादी थी। जैसे ही मैंने पेपर दिया, बाहर आने लगी, उसने मेरी कलाई पकड़ ली। कहने लगी, जान से मार डालेगा वो तुझे, गुस्से का बहुत तेज़ है, अभी भी वक्त है अदन। मैं वहीं खड़ी हो गई। वो भागती हुई मेरे पास आई थी, मेरे सामने आके खड़ी हो गई थी। अभी भी वक्त है तेरे पास? मैंने कहा, क्या वक्त है, क्या कर सकती हूँ मैं, बस 2 दिन रह गए हैं। कहने लगी, अदन मैं तुझसे कब से कह रही हूँ, वो तेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के रख देगा। मैंने अपने कानों से सुना है उसे ये कहते हुए कि एक बार वो लड़की मेरे घर तो आए, उसे बताऊंगा कि थप्पड़ मारना क्या होता है। फिर उसकी जान देख, अपनी नाजुक जान देख, देख जान है तो जहान है। मैं फिर से खौफ में मुब्तला होने लगी। मैंने कहा, मैं क्या करूं, तुम बता दो मुझे। कहने लगी, ऐसा कर, घर से भाग जा। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? अगर मैं घर से भाग गई तो मेरे बाप की इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। कहने लगी, तो अगर तू जिंदा रहेगी तो तेरा बाप तेरे मरने पे रो रो के वैसे ही मर जाएगा। देख मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरा भला चाहती हूँ, भाग जा अदन, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। मैंने कहा, तुम क्या करोगी? मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं इतनी खौफजदा थी। कहने लगी, बस वादा कर, मेरा नाम नहीं आएगा। फिर उसने मुझे अपने बैग में से एक बुर्का निकाल के दिया। कहने लगी, कल रात अंधेरे में इसे पहन के निकल जाना, और देख पिछली तरफ से तेरे घर से जो दरवाज़ा खुलता है वहाँ से बाहर निकलना। वहाँ ना एक पतली सी गली है, जैसे ही उसे अबूर करोगी सामने दूसरी जानिब का मेन रोड आ जाएगा, वहाँ से रिक्शा पकड़ लेना। फिर उसने अपनी दूसरी जेब में से मुझे पैसे निकाल के दिए। कहने लगी, ये रख ले, ट्रेन के टिकट खरीद लेना, अपने गाँव चली जाना, वहाँ सब तेरे अपने हैं, तुझे सहारा भी दे देंगे और तेरे घर वालों को भी यकीन हो जाएगा कि तूने शादी से बचने के लिए ये सब किया है। देख ये तेरे पास आखिरी मौका है। ज़िंदगी किसे प्यारी नहीं होती, मुझे भी थी। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं उस शख्स के जनून का निशाना नहीं बनना चाहती थी। मैं पेपर दे के आई तो मेरे वालिद सहन में ही कुर्सी पे बैठे थे। सामने रखी गोल मेज़ पे कई लाख रखे हुए थे। मेरी फूफो कहने लगी, रख लो भाई साहब, अब तो आपका बदमाशों से पाला पड़ने वाला है, दूसरों के लूटे हुए पैसे से आपका घर अच्छा चल जाएगा। मेरे वालिद कहने लगे, अपना मुंह बंद करो सुरैया, तुम्हारे सामने क्या मैंने उसे मना नहीं किया? क्या ये नहीं कहा कि मैं अपनी बेटी की रुखसती कर सकता हूँ? तुम जितने मर्जी मेहमान ले आओ, भूखा कोई नहीं जाएगा। और क्या कहता मैं उसे, वो ज़बरदस्ती पकड़ा के चला गया है। हमें तो लगता है जैसे हमने बेटी का रिश्ता नहीं किया, अपनी बेटी का सौदा कर दिया है। फुफ्फो जाने क्या कुछ कहती हुई किचन में चली गई। मेरे वालिद की आंखों में आंसू थे। मैं अंदर आई, एक नज़र मेरे वालिद ने मुझे देखा और अपना रुख बदल लिया। मैं जानती थी कि इस घर में कोई भी अबू ज़र से शादी होने पे खुश नहीं है, मैं भी नहीं थी। ये एक ज़बरदस्ती का रिश्ता था। मैं कमरे में आई और अफीरा की बात पे सोचने लगी। वो यकीनन ये नहीं जानता कि मेरा ताल्लुक़ किस गांव से है, और मेरे वालिदैन को जब ये पता चलेगा कि मैं गांव गई थी तो यकीनन मेरे किरदार पे कभी भी कोई शक नहीं करेगा। ख़ास तौर पे मेरे वालिदैन तो नहीं करेंगे, और बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं थी। बाकी की ज़िंदगी भी गाँव में हम लोग गुजार लेते, कम से कम इस बदमाश से पीछा तो छूट जाएगा। मैं सोच चुकी थी कि मुझे अब अफीरा की बात पे ही अमल करना चाहिए। मेरे वालिद घर से बाहर जा चुके थे। अगले रोज़ शाम को भी अफीरा और उसकी बहुत सारी कज़नें मेरे घर आ गई, मेहंदी का जोड़ा लेके। मेरी फुफ्फो उसे देख के हैरान थी। कहने लगी, तुम यहाँ? कहने लगी, तो और क्या, अरे हम तो लड़के वाले हैं ना। फिर मुझे कहने लगी, जल्दी से जोड़ा पहनो, मेहंदी की रस्म भी तो करनी है। सब खवातीन मेरे घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मैंने खामोशी से जोड़ा पहन लिया। ढोलक भी अफीरा ने बजाई, गाने भी गाए।
मेहंदी की रस्म करने के बाद जाने से पहले कहने लगी, याद है ना तुम्हें, आज रात का वक्त है, अगर आज रात तुमने हिम्मत ना दिखाई तो सारी ज़िंदगी रोना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ। वो जा चुकी थी। फुप्पो भी जल्दी ही अपने कमरे में जाके लेट गई। रात को 2 बजे के वक्त मैंने वही बुर्का पहना जो अफीरा ने मुझे दिया था। डरते डरते मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकली। मेन रोड पे पहुंची। मैं नकाब में थी, मुझे कोई पहचान नहीं सकता था। मैंने रिक्शा लिया। उन्हें कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। वो रिक्शे वाला मुझे सर से पैर तक देखने लगा। मैं बेहद घबराई हुई थी। रिक्शे वाला शीशे से मुझे पीछे देख रहा था। कहने लगा, बेटा इस वक्त तो किसी भी ट्रेन का वक्त नहीं है, और फिर अकेली कहाँ जा रही हो? मैंने कहा अपने काम से काम रखो और जल्दी चलो। बार बार वो मुझे देख रहा था। मैं कभी अपनी उंगलियां मसलती, कभी चटखाने लगती। बड़ी आहिस्तगी से वो मुझे स्टेशन तक लाया। मैंने उसे पैसे दिए और अंदर आ गई। अंदर बिल्कुल सन्नाटा मचा हुआ था। मैंने अपने लिए गांव की टिकट खरीदी। ट्रेन आने में 15 मिनट बाकी थे, पर मैं बेहद परेशान थी। मैं वहीं पर एक बेंच पे बैठ गई। अजीब से नौजवान मुझे देख रहे थे। कुछ नशे के सिगरेट पी रहे थे, नशे से झूम रहे थे। वैसे भी वो मशहूर शहर का स्टेशन तो था नहीं कि वहाँ दुकानें बनी होती या रौनक होती। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। उनमें से कुछ सिगरेट पीते नौजवान लड़खड़ाते कदमों से मेरे बेंच के पास आके रुक गए। कहने लगे, सोनियो किधर जा रहे हो? ओ भी कल्ले कल्ले। वो दोनों नौजवान नशे में डूबे हुए थे। दोनों ही मेरे दाएं बाएं बैठ गए। एक कहने लगा, बिना सामान की लड़की अगर बेंच पे बैठी हो, ट्रेन का इंतज़ार करती हो तो कमाल, तू जानता है ना क्या चक्कर होता है। दूसरा हंसते हुए कहने लगा, घर से भागी हुई लड़की होगी, आशिक का इंतज़ार कर रही होगी। इससे पहले कि मैं उस बेंच से उठती, उनमें से एक ने मेरी कलाई पकड़ ली। अरे आशिक के साथ रात गुजारने से पहले हमें भी खुश कर दो। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बुज़दिल किस्म की लड़की थी। दूसरा कहने लगा, हाँ तो शौक से मचाओ शोर, इस अंधेरे में कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं है। जिसने मेरी कलाई पकड़ी थी वो कहने लगा, चल चल, इससे पहले कोई यहाँ आए इसे यहाँ से ले जाते हैं। मैं अपना हाथ छुड़वाने लगी। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, कोई है प्लीज़ बचाओ। कहने लगा, घर से भागने से पहले नहीं सोचा था? अरे एक बार लड़की घर की दहलीज से निकली तो बस समझो कि उसकी इज्जत ख़त्म हो गई। ऐसी लड़कियां ही तो हमारे लिए मुफ्त का सामान होती हैं, और मुफ्ता कोई नहीं छोड़ता। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो खुदा के लिए। मैं रोने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। लेकिन वो दोनों नौजवान मुझे बाजू से पकड़ के घसीट के ना जाने कहाँ लेके जा रहे थे। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। स्टेशन पे ही एक कमरा बना हुआ था। उनमें से एक नौजवान उसका दरवाज़ा खोलने लगा। तभी एक घूंसा उस नौजवान के मुंह पे पड़ा। वो दूर जाके गिरा। जब मैंने सामने देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए। सामने अबू ज़र खड़ा था, बेहद गुस्से में। उसे देखते ही दूसरे नौजवान ने मेरा हाथ छोड़ा और भाग गया। वो नौजवान जो ज़मीन पे गिरा था वो भी उठ के भाग गया। अबे सालो, भागते कहाँ हो तुम लोग? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं भी डर के भागने लगी तो 2 कदम तेज़ उठा के उसने मेरी कलाई पकड़ ली। ए लड़की, भाग के कहाँ जा रही हो? शायद उसने मुझे पहचाना नहीं था, वरना वो मेरा नाम लेता। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मेरी आवाज़ सुन के उसने ज़ीरक नज़रों से मुझे देखा। कहने लगा, कौन हो तुम? मैं अपना हाथ उससे छुड़वाने लगी। कहने लगा, तुम्हें मेरे मोहल्ले से किसी ने निकल के भागते हुए देखा है? मेरे मोहल्ले की लड़की हो के तुमने भागने की जुर्रत की तो की कैसे? सच बताओ, कौन हो तुम और किस आशिक को बुलाया है तुमने? मैं अपना हाथ छुड़वाए जा रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त से मेरा हाथ छुड़वाना मेरे लिए नामुमकिन सी बात थी। वो मुझे बाहर लेके आया जहाँ पे एक जीप खड़ी थी, जो अक्सर वो आने जाने के लिए इस्तेमाल करता था। साथ में वो रिक्शे वाला भी था। उसे देख के मेरे होश उड़े। वो रिक्शे वाला कहने लगा, हाँ अबू ज़र भाई, यही थी वो लड़की, आपके इलाके से ही निकली थी। अबू ज़र कहने लगा, अच्छा किया तुमने फ़ोन करके बता दिया। मैं अंदर ही अंदर अपनी किस्मत को रो रही थी। उसने मुझे जीप की फ्रंट सीट पे बैठने के लिए कहा और बड़े गज़बनाक लहजे में कहा, फिर खुद भी फ्रंट सीट पे बैठ गया। कहने लगा, बताओ किस घर से निकली हो तुम? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं रोने लगी। कहने लगा, जिसकी खातिर निकली हो ना, उसे तो मैं वैसे भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने शराफत से नहीं बताया तो याद रखना, जान से मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मेरे मोहल्ले से आज तक किसी लड़की ने ये जुर्रत नहीं दिखाई कि घर से भागने की गलती करे। मैंने कहा, तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बात पे वो फिर मुझे गौर से देखने लगा। फिर उसने मेरा नकाब पकड़ के उतार दिया। मुझे देख के उसकी आंखों में हैरत उतरी। बेयकीनी से कहने लगा, अदन जी आप? मैंने अपना रुख बदल लिया। बड़ी तेज़ रफ्तारी से उसने अपनी जीप चलाई, लेकिन मुझे घर पे नहीं उतारा था। पता नहीं कहाँ ले गया। शायद उसका डेरा था। खाली मैदान था जहाँ बस एक कमरा बना हुआ था। वहाँ उसके सारे कज़न और आवारा लड़के मौजूद थे। गाड़ी कुछ पीछे खड़ी की और नकाब मेरी गोद में फेंका। कहने लगा, पहनो इसे। मैंने वो नकाब पहन लिया। जैसे ही वो डेरे के अंदर दाखिल हुआ, लड़के कहने लगे, अबू ज़र किसके घर की लड़की है? हमें बताओ, हम इसके बाप को बुलाते हैं। वो कहने लगा, नहीं किसी को नहीं बुलाना, तुम लोग जाओ यहाँ से, जब मैं फ़ोन करूँ तब आना। वो सब हैरान थे। अमजद कहने लगा, हम क्यों जाएं? कौन है ये लड़की? अबू ज़र कहने लगा, तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से,
सवाल पूछने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। सब लोग वहाँ से गाड़ियों में बैठ के चले गए। तब वो नीचे उतरा, मेरी कलाई बड़ी ज़ोर से पकड़ी, मुझे गाड़ी से नीचे उतार के वो उस कमरे में ले गया जहाँ सिर्फ एक कुर्सी पड़ी थी। जाकर मुझे उसने उसी कुर्सी पे बिठा दिया और कमरा बंद कर दिया। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, दरवाज़ा क्यों बंद किया है? कहने लगा, एकदम चुप। बेतहाशा गुस्से में था। अपने होंठों पे उंगली रख के उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। कहने लगा, बैठो कुर्सी पे। वो बेतहाशा गुस्से में था। मैं सांस लेना भी भूल गई थी। मैं चुपचाप कुर्सी पे बैठ गई। कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था। दूसरी बार उसने लफ्ज़ जमा जमा के कहा कि आप ऐसी हरकत करेंगी। फिर कहने लगा, नहीं नहीं अदन जी, आप कुछ भी कर सकती हो मगर घर से भाग नहीं सकती। फिर मेरे पास आके घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ गया। उसकी गज़बनाक आंखों के सामने मेरी बोलती बंद हुई। कहने लगा, बताओ किसने मशवरा दिया था भागने का? मैंने कहा कि किसी ने नहीं। कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, इतना बड़ा कदम आप नहीं उठा सकती। बताओ किसने कहा था घर से भाग जाओ? मैं पूरी की पूरी काँप रही थी कि किसी ने नहीं कहा था, मैं खुद। मेरा ये कहना था कि वो धाड़ते हुए कहने लगा, झूठ मत बोलो मुझसे, मैं जान निकाल लूँगा तुम्हारी। आखिरी बार बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, बताओ किसके कहने पे भागी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं करनी थी तुमसे शादी, कोई रास्ता नहीं छोड़ा था तुमने। वो कहने लगा, फिर भी आप भाग नहीं सकती, इतना तो मैं भी जानता हूँ। इतनी जुर्रत आप कभी कर ही नहीं सकती अदन जी। अगर सच नहीं बताओगी ना तो माँ कसम कुछ भी कर जाऊँगा। आपने भागने का सोचा तो सोचा कैसे? पता नहीं था कि कल किसके साथ निकाह होने वाला है। मैंने कहा, इसीलिए भाग रही थी। फिर मैंने अपने हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए बख्श दो मुझे। कहने लगा, मुमकिन ही नहीं है, इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी बड़ी जुर्रत की। इतनी जुर्रत तो वो लड़कियां भी नहीं कर सकती जो बड़ी तेज़ तर्रार बनती हैं। उन्हें भी पता है कि मैं कैसा हूँ। और आपने अपने बाप की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा कि कल को लोग क्या कहते हैं। ऐसी तो नहीं हो जी आप। मेरा दिल नहीं मानता। अभी भी वक्त है, मुझे शराफत से बता दो किसने मशवरा दिया था, किसने उकसाया था इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। मेरा दिल अंदर से सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। उसने जेब से पिस्टल निकाली और मेरे माथे पे रख दी। मेरा सांस सीने में अटका था। सच बताओ वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। मेरी मंगेतर होते हुए भागने का सोचा तो सोचा कैसे? वो इतनी ज़ोर से धाड़ा कि मुझे लगा बस अब मेरी जान निकल जाएगी। मैंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। फिर मेरा बाजू बड़ी ज़ोर से पकड़ा। कहने लगा, टांगें तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी अगर तुमने मेरे साथ रुखसत होने से पहले कदम भी बाहर निकाला तो। तुम्हारे घर के बाहर पहरेदारी बिठाऊंगा, समझ रही हो ना क्या कह रहा हूँ तुमसे? जिस गजबनाक लहजे से वो कह रहा था, मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दिल यूं धड़क रहा था कि जैसे बस सीना चाक करके बाहर आ जाएगा। मेरे आंसू तक खुश्क हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मेरा सांस बंद हो जाएगा, मुझ पे मौत वाक़ई हो जाएगी। उसका गुस्सा, सख्त लहजा मेरे अंदर से बची खुची जान भी निकाल चुका था। मेरा बाजू पकड़ के वो मुझे बाहर लेके आया। तेज़ कदमों से चलता हुआ मुझे गाड़ी तक लेके गया। कहने लगा, बैठे इधर। फिर बड़ी तेज़ रफ्तारी से उसने अपनी जीप चलाई और उसी तंग सी गली में मुझे ले गया। उसी तंग गली के सामने गाड़ी रोकी जहाँ से मैं बाहर निकली थी। कहने लगा, जाओ अपने घर। उसका ये कहना था। मैं जल्दी से उसकी जीप से नीचे उतरी और भागती हुई अपने घर के दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा अभी भी थोड़ा सा खुला हुआ था जितना मैं खोल के गई थी। मैं अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, लेकिन उसके जीप के जाने की आवाज़ नहीं आई। वो अभी भी खड़ा था। मैं अपने कमरे में आके दरवाज़ा बंद करके फूट फूट के रोने लगी। जब किस्मत ही साथ ना दे तो इंसान 1000 कोशिश कर ले, खुलासी नहीं पा सकता। सुबह तक मुझे तेज़ बुखार चढ़ चुका था। फूफो कहने लगी, कुछ देर में ब्यूटिशियन घर आने वाली है, यहाँ तुम बुखार चढ़ा के बैठ गई हो। तुम्हारे बाबा ने गाँव के कई बुज़ुर्गों को भी शादी पे बुलाया है, वो लोग भी बस पहुँचने वाले होंगे। हमारी बरादरी के भी कई लोग आ रहे हैं। ये नाश्ता करो और दवाई खा लो। चाय का कप उन्होंने मेरे सामने रखा, साथ में बिस्किट्स थे। बमुश्किल मैंने थोड़ा सा खाया। चाय का कप भी आधा पिया, फिर बुखार की गोली खा ली। पहली बार उसका लाया हुआ अरूसी लिबास बाहर निकाला। बहुत कीमती था, मैरून रंग का था। फूफो ने जेवरात भी निकाल के दिए, साथ में मेकअप भी निकाल के रख दिया। तभी गांव से हमारी बरादरी के मेहमान भी आ चुके थे। बाहर टेंट लग चुके थे, सारी तैयारियां हो रही थीं। ब्यूटिशियन भी आ गई, उसने मुझे तैयार भी कर दिया। मेरी बहुत तारीफ़ कर रही थी। कहने लगी, बड़ा अच्छा नसीब पाया है अब्बू ज़र ने, लड़की तो अपने लिए हीरे जैसी ढूंढी है। तुझ पे तो मुझे ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा, तुम तो यूं ही बड़ी खूबसूरत हो। मैं गुमसुम सी बैठी थी, आने वाले वक्त का सोच के जान निकल रही थी। ब्यूटिशियन जब चली गई तो मेरी फुफ्फो अंदर आई। कई हज़ार के नोट मेरे सर से वारे। अल्लाह नजर बद से बचाए, माशाल्लाह से बहुत रूप चढ़ा है तुम्हें। गांव की कई खवातीन ने आके मेरी तारीफ़ की। सब कुछ बेमानी सा लग रहा था मैं कोई बेजुबान जानवर हूँ जिसका सौदा किया गया है। कुछ देर बाद ढोल की आवाज़ पे पता चला कि बस अब कुर्बानी का वक्त आ चुका है। बहरहाल निकाह के वक्त मेरी फुफ्फो अलबत्ता ज़रूर रोई थी, पर
मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकले थे, शायद खुश्क हो चुके थे। इजाब व कबूल के बाद मैंने कांपते हाथों से साइन किया, फिर पेन को वहीं फेंक दिया। कुछ देर बाद मेरी फुप्पो ने मेरे सामने खाना ला के रखा। कहने लगी कुछ खा लो, उसके बाद बुखार की गोली खा लेना। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है और गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल रुखसती के वक्त मेरे वालिद मेरे कमरे में आए, मुझे अपने साथ बाहर लेके गए। मेरा हाथ अबू ज़र के हाथ में देने से पहले मेरा सर अपने कंधे पे रखा, रोने लग गए। मेरा हाथ बर्फ़ की मानंद सर्द था। अबू ज़र के हाथ में दे के कहने लगे, अपना वादा पूरा करना, मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। वो कहने लगा, चाचा जी नहीं आएंगे, वादा किया है तो वादा पूरा भी करूँगा। हालांकि एक गली का रास्ता था, लेकिन फिर भी गाड़ी फूलों से सजी हुई थी। उसमें बैठ के जब मैं दूसरी गली में पहुंची तो बड़े अनार जलाए गए, फायरिंग की गई, इतनी के पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंजी थी। जाहिर है बदमाश की शादी थी। बदमाश की शादी हो और गोलियां ना चलें, ये कैसे मुमकिन था। मुझे गाड़ी से नीचे उसकी कज़नों ने उतारा था। दरवाजे पे पहुंची तो हाथ फैला के रास्ता अफीरा ने रोका। कहने लगी, ऐसे कैसे अंदर जाने दूँ, चल पैसे निकाल। बड़े आराम से बात करी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे तो लगा था वो शादी पे आएगी ही नहीं, उसके तो अरमानों का खून हुआ था, लेकिन मुस्कुरा रही थी। अबू ज़र कहने लगा, हाँ आज तो मेरे मन की मुराद पूरी हुई है, आज तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा, बता कितने पैसे चाहिए। कहने लगी, या तो वो दे जो मैं मांगूँ, या फिर जेब में पैसे हैं तो वो दे के चला जा, दो बातें एक साथ ना कर। कहने लगा, क्या चाहिए तुझे। वो हंसने लगी, अगर बता दिया तो तेरी बीवी को बुरा लग जाएगा कि मुझे क्या चाहिए। तू ऐसा कर, जेब में जो है बस वही दे दे। उसने जेब से बटवा निकाला और पूरे का पूरा अफीरा के हाथ पे रख दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले आया, लेकिन फ़ौरन से अफीरा ने उसके हाथ से मेरा हाथ अलग किया। कहने लगी, तेरी दुल्हन को कमरे में मैं लेके जाती हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वो घर के अंदर मुझे ले गई। काफ़ी बड़ा घर था, लेकिन पुराने तर्ज का बना हुआ था। एक कमरे में ले जाके उसने मुझे बिठा दिया जो फूलों से सजा हुआ था। मेरे हाथ बर्फ़ की मानंद ठंडे थे और जिस्म बुखार की हिद्दत की वजह से गर्म। मुझे बेड पे बिठा के कहने लगी, बहुत मुबारक हो तुझे, तेरी ये आजमाइश भरी ज़िंदगी। फिर कहने लगी, ये पिस्ते बादाम वाला दूध रात को सोने से पहले अबू ज़र को ज़रूर पिला देना, या ऐसे करना कि आधा तू पी लेना, क्योंकि शामत तो तेरी आनी है, उससे ज़्यादा तुझे इसकी ज़रूरत है। मैंने देसी घी भी डाल दिया था। फिर पूरे कमरे को देखने लगी, ठंडी आहें भरने लगी। कहने लगी, चल जाती हूँ मैं, क्योंकि जितना वो बेसब्रा है ना, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगा, सुबह तक अगर तुम बच गई तो मुलाकात होगी। ये कह के वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। वो शायद वाकई में बेसब्रा था। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो